Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming examinations. So this video is for those who are preparing for ICMR Scientist B examination for biomedical sciences. So this video series will help you to find out what are the most expected questions that you can expect in the upcoming examination. So I hope you already have filled the form and you have started the preparation. So without further delay, let's start the video. But only a single request that don't forget to subscribe the channel for more such videos, and you can also recommend me that what topic you want me to make a video on. So we are starting this series from the most important topic of ICMR syllabus. I hope you have already observed the syllabus, you have already written in your notebook what are the important units and up to how much depth you have to cover it. So from that syllabus I have picked the most important one, that is communicable diseases. So the first part will deal with this communicable diseases, and also in the second, and I hope that I will finish it in two parts. Let's see is it possible or not. So don't forget, and if you don't have any knowledge about this ICMR Scientist B examination syllabus, then do let me know. I will make a short video on that which unit you need to focus on mainly. So let's start the video. So firstly you should know about the categories of different diseases, or you can say the disease category on the basis of like priority. So first one is group A diseases, which includes different diseases having the highest priority. So basically this group includes several diseases which are considered as a highest priority disease, which needs to be immediately reported within 24 hours of its occurrence. So it is very important. So the list includes some major diseases including cholera, plague, yellow fever, novel influenza, CCHF, and also dengue, pneumococcal diseases, HIV, meningococcal infection, TB, malaria, rabies, and along with its different syndromes. So this group A is having most like वेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी डिजीजेस जिसे बहुत जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है जैसे ही अक्यूरेंस हुआ. सो वॉट एवर बी द रैपिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड टू रिपोर्ट इट एज soon as possible. Now apart from group A we are having group B, in which we are having some important communicable diseases like hepatitis, typhoid, pertussis, brucellosis, leishmaniasis, and many more. Along with it, we are also having group C or diseases which are having different health condition which are under surveillance. So firstly in this part 1 we're going to focus on group A. So this is why I have told that we need so many parts of this communicable diseases because it is very vast. So today we will focus on group A, that is disease with highest priority. So without further delay, let's move on to the first disease. I have mentioned cholera. So cholera is a group A disease. Now from here one MCQ can be asked, like they will ask this way. They will give four option A, B, C, D, and they will mention some disease name, and they will say whether it is group A or odd one out, or choose the most highly prioritized disease name which is categorized under group A. So you need to be prepared accordingly कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, whether options can be given on the basis of disease, or you can also given on the basis of priority. So let's start with the cholera. So cholera is caused by, like the infectious agent is Vibrio cholera, which is a bacteria, and it has two serogroup, mainly O1 and O139. So this Vibrio cholera has two serotype,
O1 and O139, and this O1 again has two biotypes, the classical and the even TOR, यानी इसके दो सब टाइप्स हैं, क्लासिकल एंड इवन TOR. अब ईच बायोटाइप हैज थ्री सब टाइप्स, यानी एक बायोटाइप के अब और थ्री सब टाइप्स हैं, जिसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, दैट इज ओगावा, इनाबा एंड हिकोजिमा. थोड़ा वियर्ड नेम है, बट यू नीड टू रिमेंबर इट क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय वाइब्रियो कॉलेरा. दो सेरोग्रुप्स होते हैं, O1 एंड O139. अब O1 के फिर से दो बायोटाइप्स होते हैं, क्लासिकल और इवन टॉर, और एक बायोटाइप के अगेन थ्री सब टाइप्स होते हैं, ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा. सो अब बात करते हैं रिजर्वॉयर की. सो ह्यूमंस एंड ऑल्सो सम एनवायरमेंटल रिजर्वायर्स एग्जिस्ट. तो ह्यूमंस क्या होते हैं, कैरियर होते हैं. अब अगर बात करें ट्रांसमिशन की, सो मेनली द ट्रांसमिशन रूट इज फीको ओरल, यानी कि वाटर एंड फूड बॉर्न हो सकता है. कंटामिनेटेड वाटर और फूड आर द मोस्ट कॉमन व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन, यू कैन से. सो अगर हम बात करें इंक्यूबेशन की, सो इट इज़ यूजुअली एक रेंज होता है, यानी हम अगर बात करें नॉर्मल रेंज की, सो इट इज़ 2 to 3 days, 2 से 3 दिन. एंड ऑल्सो इट वेरीज फ्रॉम फ्यू आवर्स टू 5 days. सो इट इज़ लाइक एक ब्रॉड रेंज है, 2 से 3 दिन तक, या फिर अप टू 5 days. तो आप क्या बोल लिख सकते हो ब्रॉडर वे पे, फ्यू आवर्स टू 5 days. नाउ कम्युनिकेबिलिटी. So until organisms are present in stool, occasionally a carrier state may persist for month. So अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करें, so we can examine it through the stool culture. Treatments की बात करें तो ORS, IV fluids and doxycycline दिया जाता है. Prevention, how you can prevent it? अगर इसका वाटर मीडिएटेड है, हम कह रहे हैं वाटर बॉर्न डिजीज है, सो यू कैन अवॉइड इट बाय हैविंग सेफ एंड clean water, proper sanitation and also through vaccination. Case fertility ratio की बात करें, so it is less than 1% if treated. So this is all about cholera. इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है cholera में. Now the next disease is yellow fever. So yellow fever के बारे में आपको जानना भी ज़रूरी, because it is also in the group A. ग्रुप ए में इंक्लूड होने वाला ये डिजीज है. सो इट इज बेसिकली द मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज, यानी ये क्या है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, एंड इट इज अ वायरल डिजीज. जैसे वो बैक्टीरियल था, ये वायरल है. सबसे ज़्यादा तो इसी में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज आफ्टर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड लेट्स से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, you will get confused about the causative agent. So you need to mention that whether it is a fungal based disease, whether it is a viral disease or bacterial disease, and then the specific causative agent name. You can make it a table. I will also provide it for you. So yellow fever is caused by yellow fever virus, that is known as flavivirus, and this is very common in the tropical regions. So let's talk about its epidemiological characteristics. So infectious agent, as I mentioned, it is yellow fever virus from group flavivirus. And रिजर्वॉयर की अगर बात करें, सो monkeys and humans से देखने को मिलता है. And transmission is vector borne. So yellow fever is a vector borne disease. Now MCQ भी हम साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक ये भी आ सकता है कि आपको तीन चार कैटेगरी दे दे. ऑप्शंस आपके 4 आएंगे, उनमें से आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर मीडिएटेड और नॉन वेक्टर मीडिएटेड डिजीज. सो बेसिकली येलो फीवर इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, एंड एडीज मस्क्यूटो से ये होता है. सो यू नीड टू मेंशन इट in your notes. What is the incubation time? 3 to 6 days of incubation is required to experience the symptoms. Now, what are the clinical outcomes of this disease? Fever, jaundice, hemorrhages, and how you can diagnose it through IgM
ELISA and through PCR. So what is the communicability of this disease? So blood of patient is infective for mosquitoes shortly before onset of fever. तो अगर communicability की बात करें, so blood of patient is infective for the mosquitoes shortly before onset of fever. तो इसके अलावा जो मेन है प्रिवेंशन थ्रू लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इस वैक्सीन के थ्रू we can get prevented from this particular disease which is an vector borne disease, viral disease है, mosquito based vector है इसमें. So all these things you need to mention it in your notebook. Now next disease is plague. So plague is a primarily a zoonotic disease which involves rodents. zoonotic disease है तो rodents और क्या होंगे, flea. So which transfer the bacteria to the various animals. और कौन कौन से animals हो सकते हैं इसमें, including humans also. न सिर्फ अलग हम animals की बात करें तो mainly ये जो disease है plague, ये एक zoonotic disease है, यानी rodents के through mainly होता है. तो अब इसके जो होस्ट हैं, होस्ट वो कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया कहाँ ट्रांसफर होता है, ये जो यर्सिनिया पेस्टिस है ये किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, रोडेंट्स के थ्रू. तो ह्यूमंस भी, यानी जितने भी एनिमल्स की हम बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर आल्सो इक्वली वल्नरेबल टू दिस डिजीज. एंड जैसे कि मैंने बताया ट्रांसमिशन, यानी ये जूनोटिक डिजीज है तो इट इंक्लूड्स रोडेंट्स एंड फ्ली बाइट और ड्रॉपलेट इन न्यूमोनिक प्लेग. इंक्यूबेशन इज जनरली 2 to 6 days, 2 से 6 दिन में देखने को मिलेगा आपको सिम्टम्स. एंड जो इसका 2 to 6 days, लेट्स से 1 week भी लगता है. एंड इसके 3 कैटेगरी होते हैं, ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक. सो अगर हम लोग इस कैटेगरी की बात करें, 3 कैटेगरी है यहाँ पे, ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक. सो अगर हम लोग बात करें किसकी, ब्यूबोनिक की, सो ब्यूबोनिक फॉर्म इज एक्सट्रीमली पेनफुल. एंड ये ब्यूबोनिक एक्सट्रीमली पेनफुल क्यों हो जाता है, बिकॉज देयर इज एक्सट्रीम स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स में जैसे कि फोटो में दिख रहा है, लिम्फ नोड में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्यूबोस, दिस वन. सो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है ये. एंड अगर हम बात करें निमोनिक प्लेग की, सो एज द नेम सजेस्ट, कफिंग होता है इसमें विथ ब्लड स्टेन स्पूटम, यानी जो स्पूटम है वो ब्लड फिल्ड होता है. एंड ऑल्सो इट इज अकम्पनीड बाई चेस्ट पेन एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग. निमोनिक वर्ड से ही समझ जाना है लंग्स इन्फेक्टेड. एंड ये काफ़ी पेनफुल होता है, यानी कि ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो हैविंग सेप्टिसेमिक प्लेग. सो जो ब्यूबोनिक फॉर्म है और जो न्यूमोनिक फॉर्म है, इट कैन प्रोग्रेस टू अ सेप्टिसेमिक फॉर्म विथ सेप्सिस, यानी सेप्सिस विदाउट एविडेंट ब्यूबोब्स इज रेयर, यानी कि ये दोनों ही इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं. और अगर हम बात करें पेन की, तो सबसे ज़्यादा पेन जो होता है वो होता है ब्यूबोनिक प्लेग में. नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल? So you can give streptomycin and gentamicin. If we are able to control the rodents, then we are able to control the plague. बिकॉज जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो rodents के थ्रू ही होता है. अब rodents में क्या क्या आते हैं, स्क्विरल्स हो गए, माइस हो गए, स्कंक, जर्बिल्स, ये सब के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है. तो अगर हम उन सब को कंट्रोल करें तो ये डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ इसके बाद जो आता है वो आता है नोवेल इन्फ्लुएंजा ए. सो जो नोवेल इन्फ्लुएंजा है, इट इज़ एन अगेन इन्फेक्शियस एजेंट. अब इसकी हम बात करें, ये किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है. सो दिस इन्फ्लुएंजा वायरस इज अ, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए बेस्ड वायरस. आरएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल. एंड अगर हम उसके ग्रुप की बात करें, फैमिली की बात करें, तो ऑर्थो मिक्सोविरिडी फैमिली का है, मिक्सोविरिडी. तो ये भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इधर डायरेक्टली और इन एन इनडायरेक्ट वे दैट
this novel influenza A disease is caused by which family virus? So it is basically an RNA virus from the Orthomyxoviridae family, and there are three antigen, namely A, B and C. So we are learning about this novel influenza A. So this type A has several subtypes which are determined by the, of course, the surface एंटीजेंस के बेसिस पर ये जो क्लासिफिकेशन है वो होता है. सरफेस एंटीजेंस के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि वो कौन सा सब टाइप है. इट हैज़ सेवरल सब टाइप्स A, B एंड C. अब अगर बात करें हम लोग इसके ट्रांसमिशन की, सो ट्रांसमिशन जो है इट इज़ बेसिकली थ्रू दी ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. अगर आप किसी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं जो इन्फेक्टेड हैं, तो उनके स्नीजिंग के टाइम, कॉफिंग के टाइम, इवन बोलते वक्त भी जो ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रहे हैं, सो यू कैन गेट इन्फेक्टेड टू. इंक्यूबेशन इज जनरली 1 to 4 डे. एंड अगर इसके अलावा हम बात करें इसके रिस्क की, सो इट हैज़ अ पेंडेमिक पोटेंशियल. यानी अभी हमने रिसेंटली फेस किया था एक कोविड पेंडेमिक, तो इसमें भी एक पोटेंशियल है कि ये, क्योंकि ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, सो इट इज़ देयरफॉर इट इज़ कैटेगराइज्ड इन ग्रुप ए. सो अगर हम लोग बात करें इसके एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की, एंटीजेनिक चेंज की, जैसा मैंने बताया कि इसके 3 सब टाइप्स हैं. सो बेसिकली it can drift, this drift occurs in all the 3 type of influenza viruses. यानी माइनर चेंज भी होने से जो सब टाइप है वो कैसे हो सकता है, चेंज हो सकता है. माइन्यूट अगर कुछ म्यूटेशन भी हुआ तो वो सब टाइप चेंज होने की वजह से उसका जो पैथोजेनिसिटी है वो डिजीज का, वो भी चेंज होता है. सो हाउ यू कैन प्रिवेंट इट? थ्रू वैक्सीनेशन एंड आइसोलेशन इज दी की. इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूर रहो, आपको डिजीज नहीं होगी. एंड द डायग्नोसिस इज थ्रू RT-PCR. सो इट इज़ एन RNA बेस्ड. किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ऑर्थोमिक्सोविरिडी फैमिली का है, एंड इसमें एक पेंडेमिक पोटेंशियल है. एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल? यू कैन गेट वैक्सीनेटेड एंड ऑल्सो आइसोलेशन इज द की. सो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इन ग्रुप ए इज Crimean Congo hemorrhagic fever, which is abbreviated as CCHF. So CCHF जो है उसको एक्सपांड करके एक जगह पे लिख लेना, वरना याद नहीं रहेगा. Crimean Congo hemorrhagic fever. So what is this disease about? ये जो है वो एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है, ठीक है. नाइरो वायरस से ये होता है. एंड अगर हम बात करें, इट इज़ अ टिक बॉर्न. ये दिख रहा है यहाँ पे, एक टिक से ये होता है. एंड इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीवर, वीकनेस, एकदम इरिटेशन, हेडेक शुरू हो जाता है, एब्डोमेन पेन, लिम्स में पेन, एंड ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. एंड ऑल्सो इन सीवियर केसेस ब्लीडिंग भी देखने को मिलता है, गम्स, नोज, इसीलिए इसका नाम है हेमरेजिक फीवर. सो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे. सो ये कुछ कॉमन इसके आउटकम्स हैं. इन्फेक्शियस एजेंट जैसा कि मैंने बताया CCHFV, यानी क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस से ये होता है, विच इज़ नोन एज नाइरो वायरस. अब ये जो है ये कौन से फैमिली का है मैं वो भी बता दे रही हूँ, बुनिया विरिडी. ये सारी ही चीज़ें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज. सो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर इन एवरी पॉसिबल वे. सो अगर हम लोग बात करें इसके रिजर्वायर की, जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे हेयर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, टिक्स हो गए, ये मेन रिजर्वायर्स हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स की अगर बात करें तो शिप, गोट, कैटल्स, ये सारे भी इनके रिजर्वायर हैं. ट्रांसमिशन जैसा मैंने बताया टिक बाइट से होता है. एंड इंक्यूबेशन इज़ यूजुअली 1 to 3 days होता है, यूजुअली 1 to 3 days होता है, बट इन सम केसेस इट लास्ट फ्रॉम 1 to 12 days. ब्रॉडर रेंज पे भी आपको पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन कितना होता है. सो व्हाट आर द क्लिनिकल आउटकम ऑफ दिस डिजीज? फीवर, ब्लीडिंग, एंड ऑल्सो जैसा मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं. और इसके अलावा इसमें डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? PCR बेस्ड हो सकता है, ELISA बेस्ड है, क्विक डिटेक्शन भी है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक भी अवेलेबल है.
प्रिवेंशन क्या है, पीपीई किट है और टिक कंट्रोल। देखो जो भी डिजीज वेक्टर मीडिएटेड है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को ही हम अगर प्रिवेंट करें तो ऑब्वियसली वो डिजीज हमें नहीं होगी, क्योंकि जो कैरियर ऑर्गेनिज्म है, वेक्टर का काम क्या है, वेक्टर व्हीकल, ये क्या करते हैं, डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कैरी करते हैं। तो अगर हम लोग इन्हीं को ही किल कर दें तो जो कॉजेटिव एजेंट है वो बाय डिफॉल्ट हमारे बॉडी में नहीं आ सकते। सो इट इज़ बेटर टू कंट्रोल दी वेक्टर बॉर्न डिजीज को। अगर कंट्रोल करना है तो वेक्टर्स को ही हमें प्रिवेंट करना होता है, सो दैट पूरी डिजीज ही हम प्रिवेंट कर पाए। सो इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है डेंगी। सो डेंगी इज अगेन फ्रॉम फ्लेवी वायरस। डेंगी वायरस से ये होता है, अगेन वेक्टर मीडिएटेड है, मस्क्यूटो बॉर्न एडीज से है होता है। इंक्यूबेशन क्या है, 4 to 10 days है। एंड अगर हम लोग बात करें इसके डेंगी के बारे में, सो इट इज़ वेरी रैपिडली स्प्रेडिंग इन ऑल दी रीजन्स एज पर दी WHO रिपोर्ट, यानी बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता हुआ ये डिजीज़ है। एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई होम, फीमेल मस्क्यूटो। फीमेल मस्क्यूटो से ये ट्रांसमिट होता है। एंड ये जो है वो एडीज के 2 स्पीशीज से होता है, एल्बोपिक्टस से भी होता है, बट मेजरली एगिप्टी से होता है, एल्बोपिक्टस। अब अगर हम लोग बात करें इसके इन्फेक्शियस एजेंट की, सो हम शॉर्ट में लिखते हैं DENV। अगर DENV है, इट स्टैंड्स फॉर डेंगी वायरस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इट हैज़ like 4 serotypes, DENV1, 2, 3 and 4। बेसिकली ये -1, -2, -3, -4 इसके जो सेरोटाइप्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब इसका जो इंक्यूबेशन है, इट इज़ लाइक ब्रॉड है, 4 to 10 days में ये होता है। एंड कम्युनिकेबिलिटी इसकी क्या है, कम्युनिकेबिलिटी में अगर हम बात करें कि नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, ब्लड बॉर्न जो है यानी इन्फेक्टेड ब्लड टिश्यूज, ये सबसे ट्रांसमिशन पॉसिबल है। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज डायरेक्टली नहीं होगा, बट अगर हम बात करें कि ब्लड से इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो देर इज चांसेस, देर इज प्रोबेबिलिटी कि हम कंटामिनेटेड चीज़ों के कांटेक्ट में आएंगे, तो हमें भी वो पॉसिबिलिटी है। सो इसके डायग्नोस्टिक की बात करें, सो NS1 एंटीजन से ये मतलब रैपिड किट से डिटेक्ट हो सकता है, IgM से डिटेक्ट हो सकता है। प्रिवेंशन एज इट इज़ एन वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर को कंट्रोल करो तो ये डिजीज भी कंट्रोल हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द पार्ट 2 आई विल कवर सम मोर डिजीज along with some questions, so do watch it till the end and don't forget to subscribe the channel. Also you can suggest me the topic, so I will make a video on that particular comment. Thank you so much for watching. Take care and पढ़ते रहो।